Assalamualaikum students, my name is Zaman Ahmad, your social study teacher. How are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss our rest of topic, shortage of fresh water and water pollution in Pakistan part 2. Obviously it's my last lecture of this chapter, and in this lecture we will cover what are the causes of shortage of fresh water, fresh water supplies in urban areas, and shortage of water, fresh water in the worldwide problem. Okay, so obviously we know that we are talking about in Pakistan. Let's start. What are the causes of shortage of fresh water? There are three main causes of shortage of fresh water, but they are in many countries and especially in poorer countries which have ड्राई क्लाइमेट्स, जिनका जिनका मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है. फर्स्ट, इंक्रीजेज इन द पॉपुलेशन, industry and irrigation. The growth of population in country means that more water required. An increase in the standard of living in a population also means that more water required. Why is that? The growth of population leads to the need for more goods and food for the people especially, and this leads to increase in industry and in the area of irrigated farmland. This means that more water is required again. And the second, the population of fresh water supply. Even if there is a sufficient fresh water is in a country, it may not all be a good for drinking. At the percent, about 20 percentage of the world's population have no safe water. Many villages in Pakistan depend on wells and rivers. Obviously जब हम गांव देहात में देखते हैं तो देखते हैं वो कहाँ से पानी they get the water from wells and river for their fresh drinking water. However, chemical is used in the field by farmer polluted some of these drinking water supplies. And the third problem is sorry, the supply of fresh water. Problem of supply of fresh water in both rural and urban areas exist in the country. Fresh water supplies in a rural in Pakistan and other country are no pipes to carry water to people homes or to their villages. There is no pipe water supply. Women and children may walk a long way each day to get their water. It's very tough. Fresh water supplies in urban areas. If we take an example of Mubarak village has no pipe water supply, but there are often serious problems of the supply of water even urban areas where there are water pipes. Yes, students, many countries, if we talk about the disputes between country, many countries include Pakistan, suffer from a shortage of water. Those shortages may cause disputes between neighboring countries. The Indus Water Treaty in 1960 between Pakistan and India helped to solve their dispute, but Pakistan's tireless fight over water with India is still going, and India's water woes, and we talk about the other countries have water conflicts. So water conflicts are worldwide, okay, and Nigeria faces ongoing water challenges, violent water tension in Mali, Iraq's multifaceted water crisis, Sudan, Ethiopia, Zaire, and Egypt. You can show in this map as well the agreement over the use of the water in River Nile. Syria, Iraq, and Turkey, you can show also in this map, have had disputes over the water in the river Tigris and Euphrates. Yes, students, when we talk about the effects, so when waterways run dry, animals may seek out drinking water from places where people live, increasing the likelihood of contact between humans with the wildlife and any diseases carrying insect they host. Drought can also elevate risk
of wildfires and dust storms that may lead to irritation of lungs and airways. The shortage of fresh water has seriously resulted. It can lead to problems with the country, as you can see it, and our reference video in this picture as well. 40% death in Pakistan annually. The people died because of दे ड्रिंक यानी कि जो गंदा पानी पीते हैं, जो पोल्यूटेड वाटर, दे ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर, डिजीजेस कॉज बाय ड्रिंकिंग कंटिमिनेटेड वाटर, स्विमिंग इन पोल्यूटेड वाटर. आपने देखा होगा बारिश के पानी में अक्सर बच्चे गंदे पानी में नहा रहे होते हैं, गंदे नाले में नहा रहे होते हैं. जाहिर सी बात है वो पानी नाक में जा रहा है, आँख में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, और फिर दे ऑब्वियसली वो बीमारियों का बाइस बनते हैं. कॉन्टैक्ट विद chemically polluted water. These are some effects of on environment that toxic water हो जाएगा. थर्मल हीटिंग की वजह से जो है इस तरह से हमें प्रॉब्लम होगी. आर सोर्सेज ऑफ वाटर जो है वो फिर बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो जाएंगे. जो सी एनिमल हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं क्योंकि सारा डम्प्ड मटेरियल जो है वो सी में जाता है. और जाहिर सी बात है ये भी हम इससे हमारी ये एक फील्ड है, एम्प्लॉयमेंट हमारी इससे वाबस्ता है. हमारे फिशरमैन हैं वो इससे लिंक करते हैं, ये उनका प्रोफेशन है. अगर उनको कितना नुकसान होगा, क्योंकि हर इकोसिस्टम है ना, इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी ये है कि हमारा ताल्लुक़ है हवा से. वी हैव अ रिलेशन विद एयर, वाटर, प्लांट एंड सी एज वेल. सो अगर एक चीज़ को नुकसान पहुंचता है तो सारी चीज़ें उनसे मुतासिर होती हैं. नॉन पॉइंट सोर्सेज अगर बात करें तो रिड्यूस ऑफ रन ऑफ, इन्फ्लरेशन ट्रेंचेस फॉर अ लॉन्स यूज फिल्टर्ड, बूफे जोन वेजिटेशन है, लैंड या लेक, रिड्यूस सॉइल इरोजन, फिल्ट्रेशन. प्लांट्स को हमें प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए. पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है हमें उनकी हमें ऐसी एजेंसीज बनानी चाहिए, ऐसा स्ट्रिक्टली लॉ बनाना चाहिए कि अगर कोई एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा हो, अगर हमें तो अभी हम इतने नॉर्मल तरीके से जो है वो प्लास्टिक को भी बर्न कर रहे होते हैं कि हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता कि एक प्लास्टिक जो है वो किस तरह से हमें नुकसान पहुँचा रहा होता है. वो जब व्हेन एवर दे आर smoke and going up, and its effect our ozone layer, and then afterward be affected कि जब जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और then started to sea level high, और फिर वो सुनामी की सूरत अख्तियार करते हैं और फिर वो गर्मी की सूरत अख्तियार करते हैं. जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली सी लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है. और फ्रेश वाटर जो है जब हमें एक मखसूस एक प्रॉपर बैलेंस पे हमें जो है हम चाहते हैं कि बारिश हो, हम अपना पानी जो है वो मखसूस कर लें, उसको कवर कर लें, उसको सेव कर लें. मगर बर्फ़ पिघलती रहेगी तो पानी ज़्यादा आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है पानी को तो हम अपने पास स्टोर नहीं कर सकते. एक प्रॉपर चैनल के थ्रू इसको स्टोर करेंगे और फिर ग्लेशियर पिघलते रहेंगे और फिर समंदर में जाते रहेंगे, ग्लेशियर पिघलते रहेंगे और समंदर में जाते रहेंगे. हमारा जो वेदर है वो कोल्ड नहीं होगा. जब कोल्ड नहीं होगा तो फिर बर्फ़ नहीं गिरेगी. जब स्नो नहीं होगी तो ग्लेशियर दोबारा से अपने आप को जब मेल्ट होंगे तो दोबारा से वो फ्रीज़ कैसे होंगे जब बर्फ़ ही नहीं गिर रही. हमारा जो वेदर है वो टेम्परेचर है वो दिन पर दिन हाई होता जा रहा है. जब फिर हमें फ्रेश वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा नीड होगी. जब जाहिर से जब गर्मी ज़्यादा होगी तो फिर बारिशें भी नहीं होंगी, तो फ्रेश वाटर के लिए तो हमें सर्वाइव करना पड़ेगा. ये पूरा सर्कल है जिसको हमें देखना है और अभी से इसके बारे में ख्याल करना है. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. यू कैन सी इट सैंड एंड ग्रिड, यानी कि इन्होंने प्रॉपर देखिए जिस तरह से उन्होंने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, फिर केमिकल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और केमिकल्स के बाद वो किस तरह से वो कुछ केमिकल्स हैं जो हार्ड फॉर्म में होते हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं. वह इस तरह से और जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं. फिर उसके बाद वो फ़िल्टर करते हैं एंड देन दे मूव ऑन देयर पाइप्स एंड देन इट्स कम फ्रॉम, फिर वो हमारे घर की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं. ये अच्छा, अब बात तो कर ली कि हमने किस तरह से जो है ना अब ये इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉजेज़ होते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है एंड जो हीट है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है. बट व्हाट कैन वी डू? अब हमें क्या करना चाहिए?
टर्न ऑफ योर रनिंग वाटर वेन एवर यू सी कि पानी लीक हो रहा है, टैप में से एक बूंद भी गिर रही है तो क्यों हो रही है, आप उसको टाइटली बंद करो कि बूंद बूंद बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अभी आपको सर्कल पाई चार्ट दिखाया गया है, बताया गया है और आपको बताया कि सिर्फ 3% पानी है पूरी दुनिया में फ्रेश वाटर टू ड्रिंकिंग एंड टेक अ बाथ, सही है, और वो 3% पे पूरी दुनिया जो है वो सरवाइव कर रही है, प्लांट भी ले रहे हैं, और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अब अल्लाह ताला के निज़ाम में हम बिगाड़ पैदा करेंगे तो जाहिर है अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ हो जाएंगे। हमें यही चीज़ हमें दूसरों में अवेयरनेस पैदा करनी है। शर्माए मत, don't there is no need to be hesitate with anyone if you are talking to and if you are taking a step to stop anyone कि आप ये मत जलाएं, आप ये मत करें, आप पानी ज़ाया मत करें, आप पानी को अच्छे तरीके से उसका ऑल्टरनेट ढूंढें कि अगर आप इफ़ यू आर वेन एवर यू आर वाटरिंग और प्लांटिंग, अगर आप वाटरिंग टू आर गार्डन एंड और फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं पानी बहुत ज़ाया हो तो नहीं, आप उसका ऑल्टरनेट ढूंढें, ठीक है। इस तरह से हम जो है बी कॉशंस ऑफ व्हाट यू फ्लश डाउन योर सिंक एंड टॉयलेट। आपको मालूम होना चाहिए कि हम पानी में हमने टॉयलेट में क्या सिंक करें, हम कहीं अपनी ड्रेन तो नहीं वो ब्लॉकेज का ज़रिया बन रहे, ठीक है। फर्टिलाइज़र करेक्टली आप बहुत आराम से, बहुत जो है जब वेन एवर वी आर जस्ट पेस्टिसाइड हम कर रहे होते हैं, हम जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको स्प्रे कर रहे होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए वो स्प्रे इतनी नॉर्मल केमिकल का कि खुदा ना खास्ता का पानी में मिक्स भी हो जाए अंडरग्राउंड वाटर में तो वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। पार्टिसिपेट इन द क्लीन अप, देयर इज़ नो नीड टू बी योर कि आप अपने घर को साफ़ करें, आप अपनी गली को साफ़ करें, आप जहाँ कचरा देख रहे हैं उन सबको साफ़ करें। ज्वाइन अ स्पेशल सोसाइटी डिवोटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। जब तक हम साथ बैठेंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, अब अपने पहले तो हम अपने आप को रेडी करें, उसके बाद अपने दूसरे अपने नेबर्स को रेडी करें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। बहुत बातें कर ली, अब हमने एक्शन करना है, अपने आप को सेव करना है, अपने आप को चेंज करना है। जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को सेव नहीं करेंगे, हमारा सेव होना, हम अपने आप को सेव नहीं कर रहे, हम सबको सेव कर रहे हैं। अगर आज आप अपनी ब्लॉकेज जो ड्रेन है उसको खोलेंगे और सामने जो गली है वो साफ़ हो जाएगी, आज जो हम अपने जो लीकेज पाइप है उसको ठीक करवाएंगे, उसमें से पानी टिप टिप करके बह रहा है उसको हम रिकवर करेंगे तो वो पानी किस तरह से हमारे आगे लाइफ टाइम में और किसी और की ज़रूरत को करेगा। थैंक यू, इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन एंड नाउ इट्स टाइम टू अटेम्प्ट योर क्विज एट एडबॉक्स। तो एडबॉक्स पे जाइए, अपने व्यूज़ भी लिखिए एंड कंप्लीट योर एडबॉक्स क्विज। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।